ایک سیکنڈ میں شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس لازمی دیں۔ آج لاہور میں دو بڑی اہم خبریں ہوئی ہیں اور ان دونوں بڑی اہم خبروں کا تعلق جو ہے وہ بین الاقوامی اور قومی نیوز سے ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ہم جو ہماری قومی خبر ہے اس حوالے سے، اور وہ ہے اوریہ مقبول جان کے حوالے سے۔ آج اوریہ مقبول جان صاحب کو جو ہے وہ 4 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ ایف آئی اے نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ آج ان کا ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہوا تھا اور اس کے بعد انہیں دوبارہ سخت کڑے پیرے میں ایف آئی اے کے اہلکار لے کر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچے۔ آج عدالت میں جو ہے بہت ہی عجیب و غریب صورتحال رہی۔ گزشتہ ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ اوریہ مقبول جان نے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ دفاع کیا تھا، اور اس مرتبہ یہ کچھ زیادہ مضبوط بھی نظر آئے اور انہوں نے اپنا بہتر دفاع کیا، لیکن ایف آئی اے نے جو ہے ایک کچھ علیحدہ ہی مائنڈ ان سے متعلق بنا رکھا، اور یہ بات اب سامنے نظر آ رہی تھی کہ ایف آئی اے جو ہے وہ آج کچھ مزید کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج عدالتی کاروائی کا احوال آپ کو بتاؤں، اور بڑی مزدار احوال ہے، کیونکہ جس وقت اوریہ مقبول جان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا تھا تو اس سے پہلے وہاں پر لائٹ ہی چلے گی۔ آج بڑی زبردست بارش اس ایریا میں ہو رہی تھی اور جس کے باعث وہاں پر شٹ ڈاؤن ہو گیا، بجلی چلے گئی، پھر اہلکار موبائل کی روشنی میں جو ہے وہ کام کرتے رہے، اسی وجہ سے کچھ تاخیر جو وہ ہوئی۔ تاہم اوریہ مقبول صاحب کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کے وکیل ایڈوکیٹ اظہر محمد صدیق صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ میاں علی اشفاق بھی موجود تھے۔ دونوں وکلا نے بھرپور دلائل کا بھی آغاز کیا اور ایف آئی اے نے بھی آج ایک مضبوط کیس جو ہے بنا کر اپنی جانب سے لے کر آئے، لیکن اوریہ مقبول جان بھی جو ہے آج ذرا مضبوط مزید نظر آئے اور انہوں نے آج ذرا بہتر طریقے سے جو ہے اپنے دلائل کا آغاز بھی کیا۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس میں جو ہے وہ سب سے پہلے آج کیا صورتحال بنی ہے۔ ایف آئی اے نے آج جب انہیں پیش کیا تو ایف آئی اے نے مزید 10 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ طلب کیا اور استدعا کی کہ ہمیں مزید 10 روز جو ہے وہ ان سے تفتیش کے لیے چاہیے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کیوں بھائی کس لیے 10 روز چاہیے، آپ کے پاس ایسے کیا مواد موجود ہے کہ میں آپ کو 10 دن کے ریمانڈ پر جو ہے یہ بندہ آپ لوگوں کے حوالے کر دوں۔ 4 روز کا ریمانڈ آگے دیا تھا، آپ لوگوں نے اس کے اندر کیا تفتیش کی ہے، مجھے وہ تو پہلے اس سے آگاہ کریں، پھر اگلی بات پر ہم آئیں گے کہ مزید ریمانڈ دیا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو جو ایف آئی کا تفتیشی افسر تھا اس نے وہاں موقف اختیار کیا کہ ہم نے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو ہے بہت کچھ ریکور کیا ہے اور ایک واٹس ایپ گروپ بھی ریکور کیا ہے جس میں اوریہ مقبول جان صاحب کی طرف سے ریاست اور ریاستی افسران کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک گروپ ہے اور کسی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ریاست کے افسران کے خلاف بہت کچھ کہا گیا ہے اور اس واٹس ایپ گروپ میں یہ ایک گروپ ہے جس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ موجود بھی ہیں۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا تھا کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جس میں ریاست کے اعلیٰ افسران اور جوڈیشری کے خلاف جو ہے مختلف ریاست مخالف ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئی ہے۔ عدالت نے پھر سوال کیا کہ ریمانڈ کی وجہ بتائیں، ریمانڈ کیوں آپ لوگوں کو چاہیے، اس کے لیے کوئی میٹر ہے؟ تو ایف آئی اے کا پھر یہی کہنا تھا کہ جی ایسا لگ رہا ہے کہ اس گروپ کا ایک خاص ایجنڈا ہے اور اس گروپ کے جو دیگر 2 ممبر ہیں ہم نے انہیں بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، انہیں بھی اب طلب کر دیا ہے۔ اس دوران اوریہ مقبول جان جو ہیں وہ بھی موجود تھے عدالت میں اور ان کے وکلا بھی موجود تھے۔ ان کے وکلا کی جانب سے جو ہے جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی پہلے تو اس کی مخالفت کی گئی، اور لیکن یہ احوال بتانے سے پہلے کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے اوریہ مقبول جان صاحب کی گفتگو سے جو انہوں نے آج کورٹ میں کی۔ پچھلی گفتگو بھی آپ کو میں نے بتائی تھی کہ انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ کچھ زیادہ مزدار نہیں تھی، وہ جاندار نہیں تھی۔ میں نے اپنے ٹویٹ کے اندر وہ اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو گھن گرج آواز کے ساتھ دلائل عمران ریاض دیتے رہے عدالت میں اور وہ پھر اس پہ ڈسچارج بھی ہوتے رہے ہیں ان مقدمات میں سے، یا پھر جوڈیشل ہوتے رہے، عدالت کے پاس کچھ جواز نہیں بچتا تھا کسی بھی لحاظ سے ان کو ریمانڈ پر دینے کا۔ لیکن گزشتہ جو گفتگو تھی اوریہ مقبول جان صاحب کی وہ کچھ مزدار نہیں تھی، جاندار نہیں تھی، اس میں کچھ
जिससे मुझे तो तरले और मिन्नतें वास्ते ही नजर आए। बहरहाल लेकिन आज की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो जरा कदरे मुख्तलिफ थी, और आज वो कुछ हशाश वशाश भी नजर आए, लेकिन आज मजबूत इरादे के साथ भी वो नजर आए। उन्होंने कहा जनाब मुझे इन्होंने 4 ट्वीट्स की वजह से गिरफ्तार किया। मैंने 4 ट्वीट्स किए थे, उनमें एक ट्वीट जो है वो एक्स, यानी कि अब तो एक्स हो चुका है, पहले साहब का ट्विटर था लेकिन अभी भी उसको ट्वीट की मद में लिया जाता है। उन्होंने कहा जी मैंने एक्स के ऊपर 4 पैगामात यानी 4 ट्वीट्स किए थे, उनमें से एक ट्वीट जो था वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा से मुतल्लिक था। और मैंने जो ट्वीट किया था वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जरूर था, लेकिन मैंने अपने ट्वीट्स में किसी को एहतजाज करने के लिए नहीं कहा। इन्होंने जो मुझ पर केस बनाया वो ये है कि मैंने लोगों को उकसाया है, लेकिन मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैंने अपने किसी ट्वीट में ये नहीं कहा कि आप लोग जो है मुझे इस हवाले से जो है आप लोग निकलें बाहर एहतजाज करें। उन्हें कहा जी ये वो जो ट्वीट थे वो मेरी राय थी, मेरी जाती राय थी, मैं वकील भी हूं, और इन्होंने मेरी जाती राय को जो है इस्तेमाल किया और उसको जो है ये नाम दे दिया कि मैंने गालबन लोगों के खिलाफ जो है अफसाने की कोई हरकत की है। उन्होंने कहा जी फिर मेरे ही इस ट्वीट के ऊपर आप देखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है अपने ही केस पर नजरसानी भी की और अपना फैसला भी जो है वो वापस लिया है। मैंने ऐसा कहीं भी अपने ट्वीट्स में नहीं कहा कि एहतजाज करो। ये एक तजिए को जो है वो जुर्म बना देते हैं। ये एक बड़ा अहम आज उनका नुक्ता था कि ये लोग अपने, जो जाहिर सी बात है इंसान अपना तजिया देता है और तजिया उसकी जाती राय होती है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उससे जो है लोग एहतजाज शुरू कर दें या वो लोगों को एहतजाज के लिए उकसा रहा है। तो उन्होंने कहा जी ये मेरा एक जाती तजिया था, जो मैंने, मेरा नुक्ता नजर था जो मैंने सामने रख दिया, और मैं तो 15 साल से इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं। बिल्कुल हमारा एक ग्रुप बना हुआ, हम 3 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ, और इन्होंने बाकी 2 लोगों को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिए। और ये मकबूल जान के आज जो ये गुफ्तगू थी बहुत ही जानदार थी, और उन्होंने बड़े मुद्दल दलाइल दिए, और उनका ये कहना था कि जी अब अगर जाती राय के ऊपर जो है इस तरह जुर्म बनने शुरू हो जाएं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर इनके वकला ने जो है इन्हीं की गुफ्तगू को जो है वो आगे टेल किया और कहा कि जिस तरह इन्होंने बताया FIA ने 4 ट्वीट्स के ऊपर जो इनको गिरफ्तार किया, और एक ट्वीट जो था और वही मेन ट्वीट था जिसका इन्होंने जिक्र भी किया, और उस पर अब फैसला भी जो है वो आ चुका हुआ है। नजरसानी अपील दायर की गई थी और उस नजरसानी अपील में फैसला वापस हो चुका है। तो लिहाजा अब इनका ये जुर्म बनता ही नहीं है, इनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अगर वो स्टैंड कर रहा होता तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जुर्म बनता था। और दूसरे फिर ये वही बात है कि जो पुराना मामला था इनका, कि हमने ये कहा था कि FIA के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो फौजदारी मुकदमा बनाए, तो लेकिन फिर भी फौजदारी मुकदमा बना दिया, क्रिमिनल केस इनके ऊपर बनाया गया। तमाम अदालत ने फिर दोनों जाने की जब दलाइल सुन लिए तो फिर कुछ देर के लिए इसको फैसले को महफूज किया, और आधे घंटे के बाद जब फैसला सुनाया तो अदालत ने, क्योंकि वकला बड़े पुरुम्मीद थे और ये चाह रहे थे और ये समझ रहे थे कि या तो अदालत बहुत ज्यादा भी अगर करे तो इनको जुडिशियल कर देगी, वरना ये मुकदमे से आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से, और ये मकबूल जान साहब को जो आज भी मुकदमे से डिस्चार्ज नहीं किया गया, बल्कि इन्हें जो है वो 4 रोज के मजीद जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। और ये मकबूल जान साहब ने आज ये भी कहा कि मुझे 4/21 के एक कमरे में रखा हुआ है, एक लॉकअप में, जहां पे और भी 21 लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ बड़ा ही हद तक आमेर सलूक जो है वो किया जा रहा है। ताहम अदालत ने इस हवाले से कोई बात नहीं की और उनकी सिर्फ इस बात को सुनने के बाद नोट शायद कर लिया, लेकिन उस पर कोई रिमार्क्स जो है या कोई ऑर्डर पास नहीं किया। ये आज की एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि और ये मकबूल जान साहब को जो है मजीद 4 रोज की जिस्मानी रिमांड पर अब FIA के हवाले कर दिया। मंगल, बुध, जुमेरात और अब जुम्मे को दोबारा FIA एहलकार जो हैं और ये मकबूल जान साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेंगे, और अब देखेंगे तब के मजीद वो रिमांड की सजा करते हैं या नहीं करते। तो हम अब भी जो है ये अब 4 रोज मजीद FIA के मेहमान रहेंगे। दूसरी जो एक अहम खबर थी वो थी फेक न्यूज के हवाले से, जो बरतानिया में फसादात हुए। यहाँ FIA ने बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया और कहा कि ये वो आदमी है जिसने खबर शेयर की, और उसके बाद बरतानिया में फसादात फूट पड़े। बड़ी हलाला मच गई कि यार पाकिस्तान से एक बंदे ने बैठ के ऐसी हरकत की और फिर उसके बाद बरतानिया में ऐसे हालात बन गए। तो हम उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर उसको रखा गया।
कुल ये 5 दिन का बनता है, क्योंकि जब उसको गिरफ्तार किया तो फिर स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 1 दिन का रिमांड दिया, फिर इसको अगले दिन लेकर आए और फिर 4 रोज का रिमांड लेकर गए। लेकिन आज जब FIA वाले उन्हें लेकर आए तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। FIA ने जो अदालत के आगे अपने पेपर रखे वो अदालत के लिए भी हैरान कुन थे और वहां पर मौजूद लोगों के लिए भी हैरान कुन बात थी कि FIA ने उसमें ये इस्तदा की कि जनाब अब हमें ये बंदा ही नहीं चाहिए, ये वो बंदा ही नहीं है जिसकी वजह से फसादात वहां पर हुए। उन्होंने जनाब हमने जो तफ्तीश की 4 रोज में बंदे से, हमने इसको खंगाल मारा, इसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए, इसकी हर चीज चेक की, इसने तो वो खबर शेयर की जो ऑलरेडी कहीं से शेयर हुई हुई थी, इसने अपनी तरफ से बनाकर नहीं लगाई, लिहाजा इसका जो जुर्म है वो कहीं साबित नहीं होता। लेकिन अब यहां अगर देखा जाए तो इतनी हलाला मच गई थी कि बरतानिया में फसादात का जो शख्स है वो पाकिस्तान से गिरफ्तार हो गया और उसके खिलाफ इतने ज्यादा सबूत जो है वो मिल गए और ये ही वो शख्स है जिसे तमाम फसादात की वो जड़ है। लेकिन अब जब FIA ने 5 दिन उसको अपने पास रखा तहकीक की तो फिर आज आके बड़े पोले मुंह से कह दिया कि ये तो वो शख्स ही नहीं निकला और बड़ी हैरान कुन बात थी। फिर अदालत ने जब ये तमाम बातें की और लिखा कि हमें इस्तदा है हमारी कि इसको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दीजिए, हमारा मुल्ज़म ही नहीं है। अदालत ने जब FIA ने कह दिया तो फिर पीछे कुछ रहता नहीं है, जिस पर अदालत ने मुल्ज़िम फरहान आसिफ को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे से और हुक्म दिया कि कमरा अदालत में ही इसकी हथकड़ियां जो है वो खोल दीजिए, अभी आज़ाद है, इसके मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। और ये एक अच्छी खबर थी क्योंकि पहले ये इल्ज़ाम आ रहा था कि पाकिस्तान से जो है बंदा गिरफ्तार किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से इस खबर से उसका कोई ताल्लुक ना निकला। वो एक न्यूज एजेंसी में काम करता था और उसने फिर अदालत ने पूछा कि भाई तुमने ये जो खबर डाली थी फिर क्या किया? उसने जनाब मैंने 6 घंटे के बाद इसको डिलीट कर दिया, मुझे अंदाजा हुआ कि ये ऑलरेडी शेयर हुई हुई खबर और गलत खबर है तो मैंने डिलीट कर दी थी। लेकिन इन्होंने मुझे उठा लिया। अदालत ने इनसे पूछा, हाँ भाई, उन्होंने कहा जी जनाब बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है, इसका इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं, ऑलरेडी वो शेयर्ड खबर थी। अब यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखें तो फिर FIA का निज़ाम बड़ा अच्छा था। FIA पहले नैब की तरह तहकीकात करता है फिर बंदा उठाता है, लेकिन इस केस में शायद कुछ जल्दबाजी हो गई है या क्या मामला है कि बड़ी जल्दी उठाया, FIA दर्ज के बंदा उठा लिया और फिर रिमांड के लिए ले आया। फिर जब तहकीक हुई तो फिर बंदा निकला वो। शायद अब इसमें बहुत सारे को मामला अंदर शायद शामिल हैं कि इस शख्स से मुतल्लिक कुछ भी ना निकलना एक अच्छी बात है। इसमें पाकिस्तान की नेक नामी या बदनामी नहीं कि एक गलत खबर जो है वो ये दी गई कि इस बंदे की वजह से बरतानिया में फसादात हुआ, हालांकि ऐसी खबर नहीं, उससे उस पाकिस्तानी फरहान आसिफ का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये आज की 2 बड़ी अहम खबर थी कि और मकबूल जान साहब जो हैं वो अब मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने उन्हें FIA की तहवील में दे दिया है। दूसरी जानिब फेक न्यूज़ बरतानिया के हवाले से कि ये शख्स अब इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुका है। मजीद खबरों के साथ भी दोबारा आपके पास हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।